या फिर सीजनल फिनोमिना है, या फिर फ्रॉग्स और लिजार्ड्स के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर बर्ड्स जो है वो सीजनल ब्रीडर है, लेकिन जिन्हें कैप्टिविटी में रखा जाता है यानी कि पोल्ट्री फार्म्स में रखा जाता है, वहां पर वो थ्रू आउट ईयर एग ले कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर द ह्यूमन वेलफेयर ऐसा होता है। तो दोज बर्ड्स हु kept in captivity conditions they can lay egg throughout the year। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। In the 1870s. Today, it's a popular tourist destination and a working mine. All the mining starts here, at the train station. This train takes miners deep into the mountains. Here, tunnels stretch for 25 miles, and it's always 64 degrees Fahrenheit. Miners work dark chambers. They've used many mining tools for over a century. Pickaxes, hand drills, and gunpowder. Done? No, sir. एक यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेस यानी कि बर्थ, ग्रोथ और डेथ, इन तीनों फेजेस के जो ट्रांजिशन है उसको कंट्रोल करता है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन्स। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। Done?
सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो। ये इससे भी ऊपर। डन सर। डन। हम एक महफूज टाइम जो आधा घंटा कम से कम होना चाहिए, उसके बाद हम उसकी साल्टिंग और लोडिंग। Rest is used for structural support, so the chambers don't collapse. Tractors haul the mine salt out of the mountain. Each day, miners excavate over 1,000 tons of salt, or about the weight of 157 elephants. Outside, they search for blocks with the best shape and coloring to send to manufacturers. Once picked, the blocks are loaded up on trucks either by hand or crane and sent across Pakistan. Historically, Pakistan couldn't process this raw pink salt, so much of it was exported to India cheaply. India would treat the salt, label it as made in India, and sell it at a premium. Pakistan saw little of the profits. NPR कर लिया reported बेटा that a मार्क्स ton of सभी ने। salt sold to India for $40 could fetch $300 in Europe. In 2019, a social जी। media campaign calling for the end of salt exports to India went viral. That same year, the Pakistani government banned all salt exports to India. The goal? Returning the profits to Pakistan. 23% जो रॉक सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग थी या जो प्रोडक्शन थी जो पाकिस्तान की, वो इंडिया को हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ फॉर्म में, जो कि फिर वो री एक्सपोर्ट होती थी ओवरसीज में सेम मार्केट में जहां हम ऑलरेडी अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं राइट नाउ। गवर्नमेंट का डिसीजन ये बहुत फायदेमंद है हमारे लिए। But some Pakistani salt exporters suffered. They didn't speak English and couldn't meet Europe's tough import standards. Only about a dozen exporters saw an opportunity to sell products under Pakistani labels directly to Europe. Mohammed was one of them. Every month he purchases 300 tons of salt from the mine for his company Himalayan Decor International. ख्योरा माइन से तकरीबन सॉल्ट लोड होता है ट्रक। सर थोड़ा ऊपर करना। जल्दी माफ करो भाई।
Wasser spielt eine wichtige Rolle im Spiel. About 43,000 international travelers fly into New York's John F. Kennedy Airport every day. By passenger volume, it's the U.S.'s largest international airport of entry. And in just Terminal 4 alone, that equates to almost 1,000 bags an hour. And in those suitcases, there's a lot of stuff, some of which isn't allowed into the country, including 120 pounds of food per day. So what happens to all those confiscated items anyway? If you flew into JFK in the 90s, getting something into the U.S. was a lot easier. But after 9/11, the conversation started about how to protect the country from dangerous foods, drugs, and people. And U.S. Customs and Border Protection, as it's known today, was formed. You'll generally see two kinds of CBP officials at airports: officers like Steve and agriculture specialists like Ginger. Their job is to find, seize, and destroy millions of items each year that don't belong in the United States. It's a big job, and sometimes it requires a sidekick on four legs. This is K9 Spike. He is an 8-year-old Belgian Malinois, been his own handler from day one, trained in narcotics. During the duration of our career, obviously he's over 400 different seizures. CBP officials like Steve identify high-risk individuals trying to enter into the U.S., as well as drugs and firearms. And because these are such high stakes, dogs like Spike are trained in a special way, in what's called passive response. Meaning if they sniff out drugs, they don't scratch, they don't bark, and they don't make a scene. They sit. And if they're right, the dog gets rewarded. His reward is actually this boy right here. So he likes to play. So You're right. You like to play? Yes, you do. Let me see it. Here at the port, it's called चलिए done. 16. Brand Doyle back to the Ranger now. I'm not leaving without extra data. Faster now. We do not have time. The second wave is coming. We're in the middle of a swell. I got it. Get your ass back to the Ranger now. Brand, get back here now. I got it. Come on, take that. Get back here, Doyle. Come on. Go. Emily overriding inside hatch. Engine flooded. Grab your position. Done.
Yes, I'm done. And the last. The new Samsung Galaxy S21. It is. Show me. You know, it's always a bit suspicious when someone... Think about it. One, if you just use your old charger, you're not getting the charging speed that you're paying for. I mean, to be honest, if you're using a 3-year-old brick, you're probably not even getting half of the charging speed that your phone is capable of. Two, chargers don't last forever. Like, aside from the fact that people lose them, if you just carry on using a charger that you've already been using for 3 years, for another 3 चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए बेटा, इजी, छोटा और सिंपलेस्ट टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से फॉर श्योर है कि आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का जरूर आएगा, और वो क्वेश्चन 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम 2 अलग अलग हिस्सों में पढ़ते हैं। कुछ पार्ट आप इसका बॉटनी में पढ़ते हैं और कुछ जूलॉजी के अंदर। तो जूलॉजी वाला पार्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का इंश्योर करती है। अगर हम इस प्रोसेस को इन डिटेल देखें तो किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर अलग अलग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि डाइजेशन है, ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, लोकोमोशन मूवमेंट है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट है। इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है क्योंकि ये किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल को इंश्योर करता है। कोई भी स्पीसीज अपने ऑफस्प्रिंग, यंग वंस और फर्दर नेक्स्ट जनरेशन की फॉर्मेशन इस प्रोसेस से करती है। इसीलिए इसके लेटर में, इसके नाम में लिखा गया है री स्टैंड्स फॉर अगेन, प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म फिर से अपने जैसा मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली सिमिलर, और देयर माइट बी पॉसिबिलिटीज की जेनेटिक वेरिएशंस भी प्रेजेंट हों, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। इस तरह कोई भी स्पीसीज अर्थ के ऊपर खुद को सरवाइव करवाती है, एग्जिस्ट करवाती है। अगर किसी भी स्पीसीज में रिप्रोडक्शन फेलियर होता है, अगर इसमें कोई चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से उसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, एंड दैट बिकम्स एक्सटेंटेड, वो एक्सटेंट हो जाएगी। रिप्रोडक्शन जो है इसको सबसे फंडामेंटल कैरेक्टर माना गया है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर रहेगा या रह रहा है या पहले से रह रहा था, तो हर कंडीशन में रिप्रोडक्शन जो है वो जरूर हुआ होगा। अदरवाइज किसी भी स्पीसीज का सर्वाइवल जो है वो विदाउट रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब अगर हम टोटल प्रोसेस को देखें तो उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। द टाइम फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। इस लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल के 3 हिस्से हैं, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। ठीक है, अब यहां पर
इस साइकिल में बर्थ सबसे पहले, आफ्टर बर्थ ऑर्गेनिज्म ग्रोज, देन आफ्टर रिप्रोड्यूस एंड आफ्टर रिप्रोडक्शन देयर इज डेथ। ये एक बेसिक सेटअप है। हम इसे लाइफ स्पैन को बॉडी के साइज से, बॉडी के हाइट से या बॉडी के वेट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, या फिर हम इससे भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि वो कितने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि क्रो एंड पैरेट अप्रोक्सीमेटली बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक साइज, बेसिक हाइट दोनों की सेम है, लेकिन क्रो 15 ईयर जीता है जबकि पैरेट 140 ईयर्स। सिमिलरली मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री अप्रोक्सीमेटली दोनों की मॉर्फोलॉजी बिट सिमिलर है, फिजियोलॉजी भी सिमिलर है, लेकिन मैंगो ट्री 100 to 200 ईयर जीता है जबकि पीपल ट्री 2000 to 3000 ईयर्स। चलिए, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम लाइफ स्पैन। मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होता है? किसी भी स्पीसीज के इंडिविजुअल से को अगर हम देखें तो उसने जितना मैक्सिमम ईयर सरवाइव किया टिल नेचुरल डेथ, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम लाइफ स्पैन। या फिर हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट एज लिव्ड फॉर, सबसे लंबे समय तक जो जीवित रहा कोई भी इंडिविजुअल किसी भी स्पीसीज का, उसको हम मैक्सिमम लाइफ स्पैन कहेंगे। मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो है वो कभी भी वाइल्ड लाइफ में ऑब्जर्व नहीं किया जाता, हमेशा कैप्टिविटी में किया जाता है। क्योंकि वाइल्ड लाइफ के अंदर लाइफ स्पैन को ऑब्जर्व करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। वाइल्ड लाइफ में सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये चलता रहता है। फूड के लिए, शेल्टर के लिए, प्रेडेटर प्रे इंटरेक्शन के लिए अलग अलग चैलेंजेस हमेशा किसी भी एनिमल के सामने आते रहते हैं। इसीलिए हम वाइल्ड लाइफ में मैक्सिमम लाइफ स्पैन नहीं देख सकते। हमें उसे पिंजरे में रखना पड़ेगा, कैप्टिविटी में रखना पड़ेगा, और तब पता चलेगा कि उसका मैक्सिमम लाइफ स्पैन कितना है। मैक्सिमम लाइफ स्पैन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीसीज। हालांकि इकोलॉजी में इसके लिए टर्म यूज की जाती है कि इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज, बट बात वही है कि स्पीसीज का इंडिविजुअल भी उसी का हिस्सा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू लिव फॉर, यानी किसी भी इंडिविजुअल से ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो कितने समय तक जीवित रहेगा, उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। जैसे कि एक बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है, ह्यूमन पॉपुलेशन की एवरेज लाइफ स्पैन कितनी है? कोई बताएगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो एवरेज लाइफ स्पैन के ऊपर बेस्ड है। 65 years. इन इंडिया दैट्स 65 years, करेक्ट। जापान में 81 years और यूएसए में 78 years। 70. अब अगर किसी भी पर्सन की सोशल सेटअप में 65 years से पहले डेथ होती है तो ये कहा जाता है कि अभी उम्र ही क्या थी। अगर उसकी डेथ 30 to 35 की एज में होती तो कहा जाता है कि नहीं, अभी तो बच्चे छोटे थे। अगर किसी की डेथ 65 ईयर के बाद होती है, अप टू 70 और 75 ईयर्स, तो ये कहा जाता है कि ठीक है, परेशान नहीं किया, चला गया जल्दी। 75 के बाद अगर है तो अब वो परेशान हो रहा है, भगवान इसे अपने पास बुला ले। ये स्टेटमेंट्स चेंज होती रहती है। किसके बेसिस पर चेंज होती हैं? They are changed on the basis of average lifespan, and life expectancy is basically based on average lifespan कि कम से कम इतने साल तो जीवित रहेगा, इतने साल तो लिविंग रहेगा। मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो ह्यूमन पॉपुलेशन की है दैट इज 121 years अप्रोक्सीमेटली, विच इज एन एस्टिमेटेड वन। जबकि एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो डिपेंड करता है कि मेडिकल फैसिलिटीज कैसी हैं, लाइफस्टाइल कैसा है, लिविंग कंडीशंस कैसी हैं। अब एवरेज लाइफ स्पैन में इंडिया 65 years, यूएसए 78 years एंड जापान इज 81 years। लिमिटेड लाइफ स्पैन किसे कहते हैं? अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो आफ्टर बर्थ नेचुरली देयर इज अ डेथ।
सो डेथ इज इनएविटेबल, डेथ को बदला नहीं जा सकता। सभी ऑर्गेनिजम्स जो है वो मॉर्टल है एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर ऑल द रिमेनिंग वन आर मोर्टल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं है? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन के बाद पेरेंट सेल का एग्जिस्टेंस नहीं रहता, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। इस तरह से नंबर बढ़ता चला जाता है, लेकिन डेथ नहीं होती। रिप्रोडक्शन इज अ लास्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ, जहां पर वो 1 से 2 या 2 से अधिक प्रोड्यूस कर देते हैं, एंड देन आफ्टर द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसेस देयर ऑफस्प्रिंग्स एंड ऑफस्प्रिंग्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। लेकिन डेथ जो है वो वहां पर नहीं होती। देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस आल्सो। जैसे कि एक स्पीसीज है जेलीफिश की, टेरिटॉप्सिस न्यूट्रिकुला, इसका कोई मैक्सिमम लाइफ स्पैन नहीं होता। रीजन, क्योंकि ये आफ्टर रिप्रोडक्शन दोबारा से मैच्योर स्टेज में पहुंच जाती है। मैच्योर होने के बाद नेक्स्ट स्टेज डेथ होनी चाहिए, लेकिन ये बायोलॉजिकली इमॉर्टल है, क्योंकि ये रिवर्ट बैक कर जाती है सेक्सुअली इमेच्योर स्टेज में आफ्टर रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? किसी भी पॉइंट में अगर डाउट है किसी को तो पूछ लो बेटा। सर इंडिया में हम कह सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 55 इयर्स होगी? हाँ, एक्सपेक्टेंसी एवरेज लाइफ स्पैन बात तो सेम ही है। अच्छा सर, ठीक है सर। क्लियर है बेटा सभी को? यहाँ तक आगे बढ़े। यस सर, यस सर। चलिए, देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट वन। ये किसी भी स्पीसीज का सेल्फ परपेचुएशन है, यानी कि वो खुद को बढ़ा रहा है, अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है, और यंग वंस जो है वो सिमिलर टू पेरेंट दिखाई देते हैं। जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैन बी पॉसिबल ओवर देयर। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, या हम कह सकते हैं फंक्शन क्या है इसकी, कि क्या क्यों जरूरत है इसकी बेसिकली रिप्रोडक्शन की? पॉपुलेशन साइज को मेंटेन करता है, ओल्डर वन को रिप्लेस करता है, वेरिएशंस को ऐड करेगा पॉपुलेशन में ताकि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट किया जा सके, किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल को इंश्योर करता है, और नेचुरल बैलेंस बनाने के लिए भी जरूरी है। देखो, नेचुरल बैलेंस का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आपने 10th क्लास में 10% लॉ पढ़ा है बायो में, ट्रांसफर और यस सर। तो उसमें क्या है कि डियर जो है वो ग्रास पे फीड करता है और लायन जो है वो डियर पर फीड करता है, करेक्ट? अब नेचुरल बैलेंस को इकोसिस्टम में कैसे बनाकर रखेगा? फॉर एन एग्जांपल, मान लो कि लायंस का नंबर ज्यादा हो गया, तो लायंस क्या करेंगे? डियर्स को फीड कर लेंगे। अब जब कोई डियर नहीं बचा तो उसके बाद क्या होगा? लायन की स्टार्वेशन की वजह से डेथ हो जाएगी और ग्रासेस बच जाएंगे। लेकिन अगर डियर का नंबर ज्यादा है, अगर डियर का नंबर ज्यादा है तो ग्रासेस खत्म हो जाएंगी, और ग्रासेस अगर खत्म हो गई तो डियर की स्टार्वेशन से पहले डेथ होगी, एंड देन आफ्टर लायन।
यानी कि इकोसिस्टम के अंदर, नेचर के अंदर जो बैलेंस बनाकर रखता है वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। और ये बैलेंस कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए फॉर एग्जाम्पल dogs can produce 6 to 8 puppies in 2 months, but अगर हम एलिफेंट की बात करें तो that have a gestation period of 635 to 641 days, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 2 साल के बराबर है, 1.5 साल से तो ज्यादा ही है, हाँ कि ना? बोलो भाई। अब अगर एलिफेंट्स का जेस्टेशन पीरियड रिड्यूस होकर 2 मंथ्स का हो जाए एज ऑफ द डॉग्स, 62 to 65 डेज तक के लिए होता है, और इवन द एलिफेंट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस 6 to 8 न्यूबॉर्न्स, तो होगा क्या? रिग्रेसली इंक्रीज होगी पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट और वो पूरे इकोसिस्टम को अफेक्ट करेगी। यानी कि नेचर जो है वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में भी उसने बैलेंस बनाया, और यहां पर भी डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन रेट उसने रखा। सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स सिमिलर रेट पर रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। लार्जर एनिमल्स या रिक्वायरमेंट जिनकी ज्यादा है, ये देखा गया है कि दे प्रोड्यूसेस लेस ऑफस्प्रिंग्स इन कंपैरिजन टू दोज हु आर हैविंग द स्मॉलर इन साइज, जिनका साइज छोटा होता है। तो मेटाबॉलिज्म किसका फास्ट होगा? जो छोटे एनिमल होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। अब देखो, अगर मैं 3 एग्जाम्पल लूं, अब इसके साथ एक और एग्जाम्पल ऐड कर देता हूं। रैट वंस अ वाइल अगर हम देखें एक ब्रीडिंग सीजन में कितना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, कोई बताएगा? 6। बोलो भाई। In a season, how many offspring produced by rat? More than 10. Approximate number 12 to 16 है। तो अगर आप देखोगे साइज ऑफ द एनिमल एंड द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो नेचर में बैलेंस बनाकर रखता है रिप्रोडक्शन। फीचर्स क्या है इसके, मैकेनिज्म क्या है? सिंपल, डिवीजन ऑफ सेल होती है यहाँ पर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए। देन आफ्टर जो न्यूली फॉर्म सेल होगी वो ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद प्रोटोप्लाज्म वहां पर सिंथेसाइज होगा, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनेंगी और फिर से वो सेल डिवाइड कर जाएगी और डॉटर सेल्स बना देगी। नंबर ऑफ टाइम्स एनिमल रिप्रोड्यूस इन अ लाइफ स्पैन, कितनी बार रिप्रोड्यूस करते हैं, इसके बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेमेलिपेरस एंड आइटेरोपेरस। सेमेलिपेरस वो हैं जो कि लाइफ में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि पेट्रोमाइजोन, स्कॉर्पियन, एनुअल प्लांट्स, बैम्बू। आइटेरोपेरस वो हैं जो कि मेनी टाइम्स रिप्रोड्यूस करते हैं विद इन द सेम लाइफ स्पैन, उसमें बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स इंक्लूडेड हैं। एनुअल प्लांट में कौन कौन से आएंगे भाई? आराम से बोलो। मैंगो इज सेमेलिपेरस और आइटेरोपेरस? आइटेरोपेरस। अगर मैं कहूँ कि मेज प्लांट या फिर वीट प्लांट या फिर राइस प्लांट, दैट इज सेमेलिपेरस और आइटेरोपेरस? सेमेलिपेरस। Types of reproduction. So there is a vast diversity among the animals. All sexually reproducing animals cannot reproduce by asexual reproduction. Is it correct or incorrect? एक बार रिपीट करना। All sexually reproducing animals can also reproduce by asexual reproduction. Is it correct or incorrect?
करेक्ट, सही है कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर मैं कहूँ कि ऑल asexually reproducing animals can also reproduce by sexual reproduction, is it correct? Correct. सर जरूरी नहीं है। अमीबा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या? नहीं होता। सर होता है, होता है। अच्छा, अमीबा में नहीं होता। हाँ, कैन ऑल, हाँ, कैन ऑल्सो, ऑल स्टेटमेंट दोनों साइड करेक्ट नहीं है। हम ये कह सकते हैं some sexually reproducing animals can also reproduce by asexual reproduction. Some asexual reproduction, एक मिनट, some asexually reproducing animal or organism may also reproduce by sexual reproduction. ये करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट, दोनों तरफ करेक्ट। करेक्ट। Asexual reproduction में gamete may or may not be formed, but there is no fusion of gametes. इसे apomixis और agamogeny भी कहा जाता है। ये फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर वेरिएशंस नहीं होती है, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, ऑफस्प्रिंग एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट की, एंड दिस इज सिंपलर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेस एनर्जी की जरूरत पड़ती है यहाँ पर, यूनिपेरेंटल प्रोसेस है, and less adaptability with changing environments. इसे सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पर क्लोन की फॉर्मेशन होती है, which is morphologically and genetically similar to the parent. यहाँ पर रैमेट एंड जेनेट्स होते हैं। रैमेट इंडिविजुअल ऑफ अ क्लोन को कहा जाएगा, जबकि जेनेट ग्रुप ऑफ क्लोन्स को कहा जाता है। In case of sexual reproduction, gamete must form. फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा, इसे एम्फीमिक्सिस भी कहा जाता है और सिंगैमी भी कहा जाएगा, गैमोजेनी भी कहा जाएगा। ये स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वेरिएशंस को ऐड करता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होती हैं यहाँ पर, क्रॉसिंग ओवर होता है, और ऑफस्प्रिंग जो है वो जेनेटिकली डिस्टिंग्विश है अपने पेरेंट के साथ, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप होगा, बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, not the simpler one, or that requires more energy. कुछ एनिमल के केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द लास्ट मोमेंट ऑफ देयर लाइफ। सेमिलीपेरस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि पैट्रोमाइजोन एंड स्कॉर्पियन, यहाँ पर फीमेल की डेथ हो जाती है आफ्टर स्पॉनिंग, एंड दैट इज अ बाइपेरेंटल प्रोसेस। More adaptability with the changing environmental conditions. Changing environmental conditions के साथ वहां पर ज्यादा adaptability होगी। एक बार बेटा इन पॉइंट्स को रिवाइज करो। I just come. एक मिनट बस। पानी तो ले आओ मम्मी। अरे पानी दे दो मम्मी। मम्मी जी, मम्मी पानी। भाई ऋतिक से बोली, ऋतिक ने दिया नहीं, प्यासा मार दिया। ऋतिक से उम्मीद ना थी हो। मम्मी आप छोको करो सब्जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और बुढ़ापा हो रहा।
हाँ जी, क्लियर है बेटा सभी को यहाँ तक? कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए, then after come to the next types of asexual reproduction. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसकी प्रोसेस में फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। फिजन की जो प्रोसेस है इसमें मैच्योर इंडिविजुअल सेल जो है वो डिवाइड करती है इनटू 2 डॉटर सेल्स और मोर देन दैट बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और एमाइटोसिस। दोनों प्रोसेस यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एमैटोटिकली और मैटोटिकली दोनों फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये डिवीजन जो है वो मैटोटिक क्लीवेज से होता है। फिजन, फिजन के 2 अलग अलग प्रोसेस हैं, बाइनरी एंड मल्टीपल। बाइनरी फिजन में डॉटर सेल 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, बाई स्टैंड्स फॉर 2, एंड मल्टीपल फिजन के अंदर द डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स, बहुत सारी डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन वहां पर करेगी, ठीक है। अब बाइनरी फिजन के अंदर एग्जाम्पल है सिंपल बाइनरी फिजन में क्लीवेज फ्लो जो है वो किसी भी प्लेन से गुजर सकता है। एग्जाम्पल है इसका अमीबा। सेकेंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल में बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर बाइनरी फिजन होता है, 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। एग्जाम्पल इज यूग्लिना एंड वर्टिसेला। ऑब्लिक जो है दैट इज एट एंगल ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर जो है एक एंगल बनाता हुआ क्लीवेज फ्लो बनेगा। एंड देन आफ्टर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो कि ट्रांसवर्सली क्रॉस करता है, क्लीवेज फ्लो बनाता है। ऑब्लिक बाइनरी फिजन में एग्जांपल है सीरेशियम गोनियोलेक्स एंड ट्रांसवर्स में है पैरामीशियम प्लेनेरिया। अब इसमें पैरामीशियम इंपॉर्टेंट है, जिसमें माइक्रोन्यूक्लियस जो है उसका वो माइटोटिकली डिवाइड करता है, जबकि मेगा न्यूक्लियस उसका एमाइटोटिकली डिवाइड करता है। यहां पर याद रखने की ट्रिक है, ट्रिक टू लर्न दिस इज स्लॉट, SLOT, सिंपल लॉन्गिट्यूडनल ऑब्लिक ट्रांसवर्स, AEGP। सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा में होता है, लॉन्गिट्यूडनल यूग्लिना के अंदर होगा एंड वर्टिसेला में भी होता है, और ऑब्लिक बाइनरी फिजन गोनियोलेक्स एज वेल एज सीरेशियम में होगा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन प्लेनेरिया पैरामीशियम में होगा, ठीक है। सिंपल ऐसे याद रखना, जो L लेटर से बने हुए हैं, L से आप E बना सकते हैं। L को अगर आप टिल्ट कर देंगे इस तरह से तो ये V की फॉर्मेशन कर देगा, V जैसा दिखाई देगा। O जो लेटर है उसको आधा कट करोगे जब बीच से तो C बन सकता है, और एज वेल एज G की फॉर्मेशन हो सकती है। T का एक्सटेंशन जो है वो P बन सकता है। That's it। बाकी दूसरे लेटर्स नहीं बनेंगे, जैसे O से आप E नहीं बना सकते, V नहीं बना सकते। नर्सरी क्लास याद है ना सभी को अपनी? सिखाया जाता था ना ऐसे, कुछ 8 का बॉक्स होता था वो ऐसे,
जिस पर आपको लेटर बनाने होते हैं। तो आप ए ऐसे बनाते हो, बी ऐसे बनाते हो, ठीक है, सी को इस तरह से बनाते हो, हाँ कि ना? बोलो भाई। क्लियर है सभी को यहाँ तक? कोई डाउट इसमें किसी को तो पूछ लो। नो सर। मल्टीपल फिजन की अगर हम बात करें तो मल्टीपल फिजन में मैनी डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल इज अमीबा, प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस। एनसीईआरटी में मल्टीपल फिजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो यहाँ पर पूरा पैराग्राफ है जिससे कि लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं। दिस पैराग्राफ इज अ क्वेश्चन पैराग्राफ। यहाँ पर एनसिस्टेशन, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, स्पोरिलेशन, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए, देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट, मल्टीपल फिजन अमीबा में। सिंपल है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो अमीबा अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है। विड्रॉ करने के बाद अपनी बॉडी के चारों तरफ 3 लेयर्ड सिस्ट बना लेता है, कवरिंग बना लेता है। इस प्रोसेस को एनसिस्टेशन कहते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, मल्टीपल फिजन होती है अमीबा के अंदर और सूडोपोडियोस्पोर्स बनते हैं। सूडोपोडियोस्पोर्स जो हैं, जब इनका नंबर बढ़ना शुरू होता है मल्टीपल फिजन से, तो ये अपने ऊपर जो सराउंड करती है 3 लेयर्ड सिस्ट, उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं एंड देन आफ्टर अ डे वहां पर जो सिस्ट है वो ब्रेक हो जाती है, बस्ट अप हो जाती है और स्पोर्स वहां से लिबरेट कर जाते हैं इनटू द सराउंडिंग मीडिया और इससे बहुत सारे अमीबा जो है वहां पर ग्रो कर जाएंगे। इस प्रोसेस को स्पोरिलेशन कहते हैं। स्पोर्स का लिबरेट होना सराउंडिंग मीडियम में एंड देन आफ्टर ग्रोइंग इनटू मैनी अमीबा, दैट इज कॉल्ड स्पोरिलेशन। प्रोटिस्ट जैसे कि मोनोसिस्ट, प्लाज्मोडियम, ये भी स्पोरिलेशन को एग्जिबिट करते हैं उनकी लाइफ साइकिल में। नेक्स्ट प्रोसेस इज बडिंग। बडिंग माइटोटिक प्रोसेस है फॉर द फॉर्मेशन और ऑफ आउटग्रोथ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और पेरेंट बॉडी से ये आउटग्रोथ बाद में एक पूरा यंग वन डेवलप कर लेती है। बडिंग इज एन अनइक्वल डिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी में लिखा होगा ना, ये लाइन मिला? बोलो भाई। मिली कि नहीं? ईस्ट के केस में देखो, ईस्ट के केस में लिखा हुआ मिलेगा आपको भाई एनसीईआरटी में। यस सर, मिल गया। मिल गया। ये देखो ना, ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल। तो बडिंग 2 तरह की होती है। बड की फॉर्मेशन बॉडी से बाहर हो रही है या अंदर हो रही है। अगर बाहर हो रही है तो उसको एक्सोजीनस बडिंग कहा जाएगा और बॉडी के अंदर अगर हो रही है तो उसको एंडोजीनस बडिंग कहा जाएगा। एक्सोजीनस बडिंग इज present in Hydra, yeast and Sycan. Very important example, Sycan. Sycan is a sponge. Scypha sponge है ये। एंडोजिनस बडिंग, जेम्यूल फॉर्मेशन जो है स्पॉन्जेस के अंदर, उसको एंडोजिनस बडिंग बोलते हैं, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। सभी फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के अंदर और कुछ मरीन वाटर स्पॉन्ज के अंदर ये देखने को मिलता है। दैट इज इन सैकन। होगा क्या? जेम्यूल की स्ट्रक्चर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आर्कियोसाइट सेल्स यहाँ पर डिवाइड करके फॉर्म करती हैं एंड फेवरेबल कंडीशन आने पर सभी आर्कियोसाइट सेल्स एक साथ मिलकर नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देंगे। आर्कियोसाइट सेल्स आर द टोटिपोटेंट सेल्स जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन करती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। सर हाँ जी बेटा, साइकिल में दोनों होगा ना, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। करेक्ट करेक्ट। फ्रेगमेंटेशन में पेरेंट बॉडी ब्रेक करेगी डिफरेंट पीसेस के अंदर एंड ईच पीस फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल।
ये हाइड्रा में, सी स्टार में और कुछ मरीन वॉर्म्स के अंदर ऐसा होता है। नेक्स्ट वन इज रीजनरेशन। रीजनरेशन दोबारा से फॉर्मेशन करना, और ये रिस्टोरेटिव एंड रिन्यूएशन दोनों तरह की होती है। रिस्टोरेटिव का मतलब है कि जब कोई भी एनिमल अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को दोबारा से बनाए, दैट इज रिस्टोरेटिव। रिन्यूएशन का मतलब है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म नया बन रहा है। इस बेसिस पर रीजनरेशन को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, मॉर्फोलेक्सिस एंड एपीमॉर्फोसिस। मॉर्फो का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ऑल मतलब ऑल साइड ऑफ द एक्सिस। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रीजनरेशन जो है वो बॉडी के ऑल साइड्स पर फॉर्मेशन करे, या आप कह सकते हैं कि ऑल साइड्स के ऊपर एक न्यू इंडिविजुअल बना दे, ठीक है, होल न्यू ऑर्गेनिज्म बना दे, उसको रीजनरेशन रीजनरेशन बोलते हैं। ये हाइड्रा में होता है। एपीमॉर्फोसिस, एपीमॉर्फोसिस जो है वो लॉस्ट बॉडी पार्ट को बनाया जाता है। ये दो तरह की होगी, रिपेरेटिव कि रिपेयर कर रहे हैं, ह्यूमन स्किन के केस में ऐसा होता है, और दूसरा होता है रिस्टोर करना, रिस्टोरेटिव। ये स्टार फिश में होगा जो अपने आर्म्स को दोबारा से बनाती है, और लिजार्ड के लिम्ब एंड टेल में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं बेटा? यूनिपेरेंटल है, रैपिड है, सिंपल प्रोसेस है, कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और आइडेंटिकल यंग वंस बनते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि इतनी ज्यादा रैपिड प्रोडक्शन है कि ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, कोई एवोल्यूशन नहीं होगा, कोई रूल नहीं होगा उसका एवोल्यूशन में, और एडेप्टेबिलिटी विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट इज वेरी लेस। तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है वो बहुत कम है, एंड देयर आर मोर चांसेस ऑफ एक्सटेंशन। वहां पर ज्यादा चांसेस जो हैं वो एक्सटेंट होने के। क्लियर है बेटा ये बात? कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये रिप्रोडक्शन हो गया। एक मिनट बेटा। यस सर। आज डेट क्या है? 13 सर। क्या होगा? हाँ जी, क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? बोलिए। बतलाना खड़ी होगी। Next one is sexual reproduction. Process of formation of young ones by the fusion of gamete. जो कि सेम इंडिविजुअल के अंदर भी बन सकते हैं, और डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स में भी बन सकते हैं। सेम इंडिविजुअल के केस में एग्जांपल है अर्थवॉर्म,
हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल कंडीशन है, लेकिन प्रोटो एंट्री है। अब ये क्यों लिखा अर्थवर्म का एग्जाम्पल, उसका रीजन बता देता हूं। यहां पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन सेम इंडिविजुअल के अंदर भी गैमीट बनने के बाद यहां पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है, जबकि इसका एक्सेप्शन भी है। यहां पर प्रोटो एंट्री होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पहले बनते हैं, फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्माथिका के अंदर स्पर्म्स डिपोजिट होते हैं, देन आफ्टर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, एंड देन आफ्टर सिंगेमी। इसका एक्सेप्शन भी है एक, जिसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होता, दैट इज टेपवर्म। टेपवर्म में दोनों सेम इंडिविजुअल में बनेंगे, बट यहां पर सर फर्टिलाइजेशन एग्जिस्ट करता है, नॉट क्रॉस फर्टिलाइजेशन। बायोलॉजिकल एडवांटेज क्या है बेटा इसका? जेनेटिक वेरिएबिलिटी लेकर आएगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होंगी, बेटर सर्वाइवल होगा चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक पैटर्न देखें तो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के बाद भी बेसिक पैटर्न सेम बना हुआ है। अब ये बेसिक पैटर्न क्या है बेटा कि पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट, फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, एंड देन आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं। एनिमल्स के अंदर डे लेंथ की बजाय नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम असल में रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब ये डे लेंथ में कहां पर कंट्रोल होगा बेटा, बोलो भाई। सब शांत बैठ जाते हैं।